Welcome back, India aspirants, to the third of 40 lectures for English Crash Course for NDA by Ma Tutorial. My name is Anmol and I'll be your guide on this journey through the English language. Today we are entering into the first of our parts of speech, nouns. These are a few examples from previous year question papers that have showed themselves relevant to the topic nouns. एक एक करके हम ये सारे एग्जांपल्स देखेंगे आगे जैसे बढ़ेंगे और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसके ग्रामेटिकल यूजेज के बारे में. So without any further delay, let's start. So nouns are first part of speech. In the first lecture we covered all the parts of speech, the 8 parts of speech. Then we did subject verb agreement, the first lecture, the second lecture after that, and today the third lecture we're starting with the nouns, the first part of speech. As you can see, nouns are of 5 kinds. They are proper, common, collective, material and abstract. अब proper nouns होते हैं किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति विशेष, किसी जगह का, किसी चीज का विशेष नाम, किसी एक ही चीज के लिए जो उपयोग किया जाता है वो प्रॉपर नाउन्स होते हैं. हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं. फॉर एग्जांपल राम और लक्ष्मण. All of these are proper nouns like Mount Everest is also a proper noun. And there's one thing, Kohinoor. Kohinoor diamond you must know. वो एक ही डायमंड का नाम है Kohinoor. So K will be with a capital letter and that's a proper noun as well. उसी तरह कॉमन नाउन्स होते हैं जो कॉमन चीजों के लिए उपयोग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल राम इज अ बॉय. तो बॉय, हर बॉय के लिए बॉय वर्ड यूज होता है और बी कैपिटल से नहीं यूज होता है. दिस इज अ कॉमन नाउन. लेट्स से लक्ष्मण इज राम्स ब्रदर. ब्रदर आल्सो यूज्ड फॉर एवरी ब्रदर. हेंस अ कॉमन नाउन. माउंट एवरेस्ट इज अ माउंटेन. दैट आल्सो बिकम्स अ कॉमन नाउन because all mountains are called mountains. It's not a particular name. It's not a name of a particular mountain. And then Kohinoor is a diamond. So diamond itself as well becomes a common noun. Then we've got collective nouns. Collective nouns we've already done yesterday. We did like a slight discussion of it. Collective nouns, कुछ nouns के जो collective group होता है उसको हम लोग collective noun कहते हैं. जैसे group हो गया, a group of things, a bunch of keys, a bunch of bananas, a class of students, an army of soldiers, a jury of judges. So ये jury, army, class, bunch, ये सब जो शब्द हैं एक से ज्यादा nouns के बारे में बता रहे हैं, वो कि एक collection of nouns के बारे में बता रहे हैं. That is why they called collective nouns. फिर हम लोग आते हैं मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन जैसे किसी मटेरियल का बना होता है. ये वुड का बना है, प्लास्टिक का बना है, आयरन का बना है, गोल्ड का बना है, सिल्वर का बना है, क्लॉथ का बना है, एक्सेट्रा. ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर मटेरियल नाउन्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, आयरन, क्लॉथ, प्लास्टिक, वुड, एक्सेट्रा. आप देखेंगे they are never used as plural unless different materials are being talked about. अब मैं ये कहूं तो plastics from made by China and the plastic made by America and together they become the plastics of the country of China and USA are polluting the oceans, for example, or the plastics from around the world are polluting the ocean. That is when if I mean two different materials of the same kind coming under the same group, तब मैं उसको plural में use करूंगा. For example, हम कहें किसी एक माइन से अगर मैं गोल्ड ले रहा हूं फिर दूसरी माइन से अगर गोल्ड ले रहा हूं तो गोल्ड्स ऑफ द टू माइन्स, देन आई विल यूज द प्लूरल गोल्ड्स बिकॉज आई मीन गोल्ड बिलोंगिंग टू 2 different places. Gold from 2 different places and 2 different sources. That is why I'm using it as a plural. Otherwise, material नाउन कभी प्लूरल में यूज नहीं होता है. I just say this bottle is made of plastic. It is not made of plastics. Unless of course I particularly want to say कि different kind of plastics से बनी है. Then I will say different kinds of plastics. Alright, and we have abstract noun then. Abstract noun होते हैं वो जो कोई पदार्थ या कोई ठोस चीज जिसको आप छू सके, देख सके, महसूस कर सके अपने स्पर्श से, वो नहीं होती हैं. उसके अतिरिक्त जो चीजें होती हैं, भावनाएं हो गई, feelings, all your emotions, all your ideas, all of these things are abstract nouns. For example, happiness, sorrow, and the idea, let's say democracy, etc. Such ideas and feelings that cannot be touched, these are called abstract nouns. Alright, now we've got 2 more kinds of nouns. अंदर ये 5 तरह के हो गए. हर 5 तरह के में nouns इस कैटेगरी में भी डिवाइड किया जा सकता है. हर नाउन को या तो काउंटेबल कहा जा सकता है या अनकाउंटेबल कहा जा सकता है. Now what are countable nouns? Countable can be counted in numbers, that is they have plurals. So for example, we can count the number of chairs, number of students, number of tables. We can say 1 student, 2 students, 3 students, 4 students. Similarly, you can say the same thing about chairs. 1 chair, 2 chairs, 3 chairs, 4 chairs. All of these are countable nouns because they can be counted and they have singular and plural forms. For example, chair becomes chairs, child becomes children, student becomes students, etc. So they have plurals. And then there are uncountable nouns. Jैसे water.
अब वाटर अगर आपको चाहिए, पानी अगर आपको चाहिए, so you will say please give me a glass of water. You won't say give me 1 water, 2 water, 3 waters. That doesn't happen. You don't say it that way. You say 1 glass of water, 2 glasses of water, 3 glasses of water. तो water अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि आप 1 water, 2 water, 3 waters नहीं कह सकते. उसको काउंट करने के लिए आपको यूनिट लगता है. जैसे 1 liter of water, 2 liters of water, तो लीटर उसका यूनिट हो गया. या 1 glass of water, 2 glasses of water, 3 glasses of water, तो ग्लास उसका एक यूनिट हो गया. These are the ways that uncountable nouns can be measured. So cannot be counted but only measured with a unit. That is, they do not have plurals. The unit is counted. अब मैं कह रहा हूं 1 glass of water तो 2 glasses of water. Glass countable noun है वहां पे. अच्छा, glass एक material noun भी है जिसको शीशा कहते हैं. और फिर ग्लास अनकाउंटेबल नाउन भी हो गया उसी तरफ से, क्योंकि मटेरियल नाउन्स अनकाउंटेबल कहे जाते हैं. कौन से 1 ग्लास, 2 ग्लासेस, 3 ग्लासेस. वो ग्लास कौन सा है? जो ग्लास आपका प्याला जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, जिसमें आप पानी भरते हैं या किसी भी तरल पदार्थ को आप भरते हैं. लिक्विड सब्सटेंस इज फिल्ड इन व्हिच. ऑलराइट, नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ दिस. लेट्स सी काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स का एप्लीकेशन हमारे पिछले एग्जामिनेशन पेपर्स में किस तरह से आया है. एक एग्जांपल पिछले एग्जामिनेशन पेपर से है और एक एग्जांपल मैंने अपनी तरफ से दिया है. फॉर एग्जांपल लेट्स से My brother goes to the office 5-day week. 5-day week? No. अब 5 काउंट है किसका? डे का. डे काउंटेबल नाउन से तो 5 days होगा. और साथ में एक गलती और है, अ वीक. पर वीक या अ वीक लगेगा यहाँ पे कि प्रति सप्ताह 5 दिन वो ऑफिस जाता है. My brother goes to the office 5 days a week. And the next one, please give me 5 waters. No, please give me 5 liters of water or glasses of water or jars of water or jugs of water or whatever unit you want to establish there in your communication. So that's nouns for us. The first thing, now we will do the application of nouns. Case 1. First of all, we will understand that some nouns which are uncountable nouns, जो अभी हमने देखा जो काउंट नहीं किए जा सकते, जैसे पानी हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ये सब आप 1 happiness, 2 happiness, 3 happiness नहीं बोल सकते. You cannot say 1 water, 2 waters, 3 waters, etc. Some uncountable nouns are only used in singular form. So some nouns which are uncountable nouns are only used in singular form. इनको singular form में ही यूज करते हैं. अगर आप उसका plural बनाओगे तो कभी कभी उसका मतलब अलग बन जाता है, या कभी कभी तो मतलब कुछ होता ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल वाटर को अगर आप waters कहेंगे तो waters का मतलब होता है खुला समुद्र. खुले समुद्र को हम लोग बोलते हैं waters. तो उसका मतलब अलग हो गया. और कहीं कहीं तो होगा ही, जैसे फर्नीचर का फर्नीचर्स होता ही नहीं है. गलत ही है अगर आप फर्नीचर्स का उपयोग करेंगे. तो कुछ नाउन्स ऐसे अनकाउंटेबल जो सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल सीनरी, सीनरी दृश्य, पोएट्री कविता, फर्नीचर पता है आपको, एडवाइस जो आप राय दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन जानकारी, हेयर बाल, बिजनेस जो आपका है, मिस्चिफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, वर्क. यहां पे एक और हम एग्जांपल देख लेंगे कि अगर वर्क को हम वर्क्स बनाते हैं उसका मतलब हो जाता है लिटरेरी पीसेस. लिटरेरी पीसेस मतलब आपके साहित्य के कार्य. फॉर एग्जांपल प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियां लिखी हैं, दो ज्यादा वर्क्स ऑफ प्रेमचंद. शेक्सपियर ने जितनी भी कहानियां लिखी हैं, दो ज्यादा वर्क्स ऑफ शेक्सपियर. शेक्सपियर के लिटरेरी पीसेस, उसके साहित्य के जितने कार्य हैं, प्रेमचंद के साहित्य के जितने कार्य हैं, जितने लिटरेचर के वर्क हैं उसके, दोज आर कॉल्ड हिज वर्क्स. तो वर्क पर ये वर्क का क्या मतलब होता है? तो काम होता है इस वर्क का मतलब. सो वर्क से वर्क्स करेंगे तो मतलब बदल जाएगा. So you see some nouns, uncountable nouns only used in singular form. ऐसे evidence भी, word भी. कौन सा? जब word का मतलब होता है promise. For example, give me your word. Give me your word that you will study hard. Give me your word that you will attend every lecture. आप promise करें मुझे. या फिर news और rumor कि I received the word from my friend living abroad. I received a word from my friend living abroad. I received some news or something he told me about. जब वर्ड का मतलब शब्द होता है तब वो काउंटेबल नाउन होता है. तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन वर्ड का मतलब अलग है. उस वर्ड का मतलब है या तो प्रॉमिस, दैट गिव मी योर वर्ड, या न्यूज़ और रूमर, दैट आई रिसीव्ड वर्ड. ऑलराइट, देन वी गॉट फ्यूल, ईंधन एंड कॉस्ट, कीमत. All of these are not used in their plural form. So we will see how it has shown up in the previous year's papers. The king was embarrassed to find evidences against his own queen. क्या गलत है यहाँ पे? Evidences हमने अभी देखा plural form में use नहीं होता है. Let's see. Evidence was here. Yes, we see evidence has been mentioned here. Evidence is not used in the plural form. Therefore, the king was embarrassed to find evidence. Evidence मतलब सबूत against his own queen. अपनी ही रानी के विपरीत सबूत प्राप्त कर राजा को बहुत शर्म आई. So the king was embarrassed to find evidence against his own queen. That's case 1 for our nouns. Then we got case 2. अब देखें भाई, अगर इन hyphenated words, hyphenated क्या होता है? जिसमें से डैश लगे होते हैं. ये जो डैश है इनको हाइफन्स कहते हैं. हाइफिनेटेड वर्ड्स. हाइफिनेटेड वर्ड में जो मेन वर्ड है उसको प्लूरल बनाया जाता है.
हाइफिनेटेड वर्ड्स में जो मेन वर्ड है उसको प्लूरल बनाया जाता है. फॉर एग्जांपल माय फ्रेंड्स डॉटर इन लॉज हैव कम. अब इसमें मेन वर्ड क्या है डॉटर इन लॉज में? डॉटर. तो डॉटर इन लॉ मतलब बहू. अगर बहुएं हैं एक से ज्यादा है तो डॉटर्स इन लॉ होगा. डॉटर्स इन लॉ. तो डॉटर्स इन लॉ और बहू का अगर हमें बोलना होगा तो उसके लिए अपॉस्ट्रोफी लगेगा. बाद में हम लोग करेंगे इस चीज को, पर एक बार अभी भी जस्ट टू प्राइम आवरसेल्व्स अप व्हेन इट शोज इटसेल्फ अगेन. सो डॉटर इन लॉज का मतलब हो जाएगा बहू का. बहू का कोई चीज है. डॉटर इन लॉज बर्थडे सेलिब्रेशन और डॉटर इन लॉज कमिंग टू द हाउस, कमिंग टू द होम. देन वी हैव बहुओं का अगर होगा तो डॉटर्स, वही प्लूरल बनाने के लिए डॉटर्स में एस लगेगा, इन और फिर LAW अपॉस्ट्रोफी एस. तो ये एक बहू का, बहुओं का, एक से ज्यादा बहुओं का. बहुएं कैसे लिखेंगे? डॉटर्स इन लॉ. द सेम थिंग विद सन्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ. तो जो मेन वर्ड है हाइफिनेटेड वर्ड में, उस वर्ड को हम लोग प्लूरल बनाएंगे पूरे को प्लूरल बनाने के लिए. लॉज में एस नहीं लगेगा प्लूरल बनाने के लिए, डॉटर में एस लगेगा. तो सम हाइफिनेटेड नाउन्स कैन नॉट बी यूज्ड एज प्लूरल. और कुछ हाइफिनेटेड नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल की तरह उपयोग नहीं किए जा सकते. फॉर एग्जाम्पल गिव मी अ 200 रुपीज नोट. नहीं, गिव मी अ 200 रुपी नोट. रुपीज नहीं लगेगा यहाँ पे, 100 रुपी नोट. गिव मी अ 200 रुपी नोट मतलब या तो मेरे को एक 200 रुपए का नोट दो, या मैं कह सकता हूं गिव मी 200 रुपी नोट्स. मुझे दो 100 रुपए के नोट दो. पर 100 रुपी द हाइफिनेटेड फॉर्म विल ऑलवेज रिमेन 100 रुपी. इट विल नॉट बिकम 100 रुपीज. सिमिलरली बुक मी अ रूम इन अ 5 स्टार्स होटल. नहीं बेटा, दिस इज 5-star hotel. So book me a room in a 5-star hotel. These are hyphenated words that do not become plural. Some more examples of hyphenated words that do not become plurals are long distance, #year-old, so 2-year-old, 3-year-old, 4-year-old, he's a 5-year-old, he's a 6-year-old. Where will it become different? When it is not in hyphen. When I'm talking about his age. So his age is 5 years. Their years will be S because 5 years will not be hyphenated. But if I'm saying he is a 5-year-old, their 5 and year will be hyphenated and year will not be plural. It will remain singular. Similarly, long-term investment, long-term relationship, etc. One-dimensional, two-dimensional, three-dimensional. वो dimensional जिसमें हम लोग रहते हैं. Fourth dimension, the time as well. Over the counter medicines जो आपको मिल जाती है. Word of mouth मतलब भाई जो बोला बोली जो चीज प्रचलित होती है, किसी चीज की मार्केटिंग होती है. अगर आप बताते हैं जैसे आपको कोई क्लास पसंद आई, आप अपने दोस्तों को बताएंगे कि दैट्स अ वेरी गुड टीचर, दे टीचिंग वेरी वेल, प्लीज गो एंड अटेंड देयर लेक्चर्स. दैट इज वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी. वर्ड ऑफ माउथ से आप पब्लिसिटी होती है, उसको वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं. ऑलराइट, नाउ वी हैव नाउन केस 3. अच्छा, कलेक्टिव नाउन्स के बारे में बात करेंगे. कलेक्टिव नाउन्स आर ट्रीटेड एज सिंगुलर्स. ज्यादातर कलेक्टिव नाउन हम लोग सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे अनलेस मोर देन वन ऑफ दोस थिंग्स रिप्रेजेंटेड बाय द नाउन इज बीइंग रेफर्ड टू. अनलेस कलेक्टिव नाउन ही हम प्लूरल में यूज कर रहे हैं. अगर कलेक्टिव नाउन हम बहुत सारे, जैसे अलग अलग आर्मीज की बात कर रहे हैं, एक आर्मी की बात कर रहे हैं, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, तो वहां आर्मी कलेक्टिव नाउन है सोल्जर्स बहुत सारे, पर जैसे मैंने एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स बोल दिया तो आर्मी एक ही है, तो वो सिंगुलर बनेगा. तो एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स इज अप्रोचिंग, आर अप्रोचिंग नहीं. बट अगर मैं कहूं द आर्मीज of the USA, Russia and China are preparing for war. The armies of USA, Russia and China are preparing for war. क्यों? क्योंकि अब मैं अलग अलग आर्मीज की बात कर रहा हूं, 3 आर्मीज की बात कर रहा हूं. वो 3 आर्मीज है इसलिए वो प्लूरल हो गया आर्मीज. वही बोला जा रहा है collective nouns treated as singular unless more than one of those things represented by the noun is being referred to. Now we are referring to more than one things. We are saying 3 armies. The armies of USA, Russia and China. Now we see some examples here again from previous year question papers. India is a country of linguistic and cultural diversity with multiple ethnic and social group. अच्छा, यहाँ क्या लिखा है? multiple, बहुत सारे ethnic and social groups बन जाएगा ये, क्योंकि multiple groups की बात कर रहे हैं. अलग अलग groups हैं, ethnic और social groups. ethnic मतलब किसी एक जगह के लोग, social भाई जो आपका समाज है, अलग अलग समाज में अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग समाजों के अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, प्रथाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, जिसके आधार पर उनमें भिन्नता होती है. तो वही बताया जा रहा है कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी. लिंग्विस्टिकली भाषा के आधार पर और कल्चरली परंपराओं के आधार पर दोनों में भिन्नताएं हैं और बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे एथनिक और सोशल ग्रुप्स हैं. She collected some armful of medicines and poured them down a drain. Again we say she collected some मतलब more than one तो plural तो armfuls मतलब हाथ भर के, कुछ बार उसने हाथ भर के मेडिसिन्स बहा दी नाले में. poured them down a drain, उनको बहा दिया नाले में. Alright, so these are collective nouns treated as singulars mostly unless of course
more than one of them is being referred to in the context. Now you have case 4. Let's see. So few, many, a number of, the number of used with countable nouns. अगर आपको countable nouns के साथ यूज करने हो words तो ये वाले यूज होते हैं. जैसे few children, many children, a number of children. The number of children who came to class was very few. So और फिर आ जाएगा हमारा less, more, much, little, quantity of uncountable nouns के साथ यूज होते हैं. For example, he gave me less water, he gave me more water, I need much water, there was little water, the quantity of water given was not sufficient or was sufficient. The quantity of water given was sufficient. तो countable nouns के लिए ये वाले words use होंगे जो noun count किए जा सकते हैं 1 2 3 4 chair, few chairs, many chairs, number of chairs. Less इसके happiness, less happiness, more happiness, much happiness, little happiness, quantity of happiness. तो जो काउंटेबल नहीं है जो नहीं काउंट किए जा सकते हैं 1 2 3 में, जिनको यूनिट लगाना पड़ता है काउंट करने के लिए, उनके साथ ये वाले वर्ड्स लगेंगे. एग्जांपल देख लेते हैं. The number of books in our library is less. अब नंबर ऑफ बुक्स हमें पता है काउंटेबल यूज किया जाता है तो लेस नहीं होता है, इसके साथ few यूज होता है. Use few with the number of books. Number of books in a library is few. Or a better way of saying it actually is there are a few books in our library. There are only a few books in our library. We don't have many books. So many बोलेंगे फिर books के साथ, much नहीं बोलेंगे. We don't have many books, we don't have much books नहीं. Much यूज करेंगे uncountable nouns के लिए. Countable book countable है, कैसे पता चलेगा भाई 1 book 2 books 3 books बोलते हैं तो वो countable noun हो गया. We'll move to case 5. Some nouns separated by a preposition must be in their, so same nouns separated by a preposition must be in their singular forms. अगर एक ही नाउन है, सेम नाउन है और बीच में एक preposition के द्वारा वो सेपरेट किया जा रहा है तो वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगा हमेशा. देखिए कैसे. Towns after towns were devastated. अब towns एक ही नाउन है जो preposition के साथ सेपरेट किया जा रहा है preposition द्वारा तो ये सिंगुलर में आएगा. Town after town was devastated. Town after town was devastated. Towns after towns were devastated is incorrect. Rows upon rows of students were sitting for the class. No. Row upon row of students were sitting for the class. Row upon row of students was sitting for the class. He inquired from doors to doors. No. He inquired from door to door. Ships after ships are arriving. No. Ship after ship is arriving. So you see, if a same noun is separated by a preposition, they must be used in their singular forms. Alright, got the next case, case 6. Some nouns are incorrectly used in general parlance. Parlance होता है जैसे आप नॉर्मल जो आपकी भाषा होती है यूज करने की, जो नॉर्मली आप बात करते हैं, जहां पे एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, घर वालों से बात कर रहे हैं, अपने किसी मित्र से बात कर रहे हैं, किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं, कहीं और बात कर रहे हैं, जो औपचारिक स्तर पर नहीं बात हो रही है, ये औपचारिक स्तर पर भी हो रही है. वहां की इंग्लिश की ग्रामर, व्याकरण नहीं चेक की जा रही है. दे नॉट चेकिंग योर ग्रामेटिकल proficiency in English. So there are some words that we use incorrectly, but we must understand that is incorrect usage of grammar. For example, हम लोग बहुत commonly कहते हैं cousin, brother और sister. गलत है ये बिल्कुल, ये इंडियनाइजेशन है, बहुत गलत है. कजिन के साथ ब्रदर सिस्टर नहीं लगता है. ब्रदर सिस्टर हमेशा मतलब होता है सिबलिंग. सिबलिंग होता है सगे, जिसके एक ही माता पिता होते हैं. जिन दो के एक ही माता पिता होंगे उनको हम सिबलिंग बोलेंगे. उसमें अगर पुरुष होगा वो तो ब्रदर होगा, महिला होगी तो सिस्टर होगी. कजिन क्या होते हैं? कजिन मतलब सारे आपके बाकी जो आपके माता पिता के भाई बहनों के जो बच्चे हैं, आपके माता पिता के नहीं पर उनके भाई बहनों के, चाहे उनके सगे भाई बहन हो चाहे उनके भी कजिन्स हो, उनके जो बच्चे हैं वो आपके कजिन है. अब कजिन में अगर आपको अपने भाइयों की बात करनी है, जैसे हिंदी में तो हम बोल देते हैं उनको भाई, अगर भाइयों की बात करनी है तो आप कहेंगे मेल कजिन्स. यू विल से माय मेल कजिन्स. स्पेसिफिकली अगर आपको अपने मेल कजिन्स की बात करनी है, और सिमिलरली आप फीमेल कजिन्स कहेंगे अगर आपको अपनी फीमेल कजिन्स की बात करनी है. So you won't say cousin, brother or sister. Cousin, brother or sister is absolutely incorrect. Only cousin is used, and then you will use male cousin or female cousin if you need to specifically mention whether they are male or female. And ये strong breeze, ये एक oxymoron हो गया. Oxymoron या एक paradox हो गया. Oxymoron और paradox मतलब एक ऐसा statement या एक ऐसा word, ऐसा phrase जो अपने आप को ही गलत साबित कर रहा है. Oxymoron या paradox. For example हम कहते हैं silent screamer. Silent screamer कि शांति से चिल्लाने वाला. अरे भाई शांति से चिल्लाने वाला का क्या मतलब हुआ? या तो चिल्लाएंगे या तो शांत बैठेंगे. शांति से चिल्लाना क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ब्रीज ऑल्सो. ब्रीज मीन्स अ सॉफ्ट विंड. अ सॉफ्ट विंड इज व्हाट ब्रीज मीन्स. ब्रीज मीन्स अ सॉफ्ट विंड. धीमी धीमी बहती हुई हवा को हम ब्रीज कहेंगे, इसलिए उसके साथ स्ट्रॉन्ग यूज नहीं हो सकता. हम जेंटल यूज कर सकते हैं थोड़ा एम्फेसिस के लिए. वी कैन से अ जेंटल ब्रीज जस्ट फॉर लिटरेरी एम्फेसिस,
बट ब्रीज इन इटसेल्फ मींस अ सॉफ्ट विंड। ऐसी बैड ड्रीम नहीं होता, इसको हम लोग कहते हैं नाइटमेयर। नाइटमेयर नाम होता है इसका, इसको हम बैड ड्रीम नहीं कहते हैं। बिग स्मॉल ब्लंडर नहीं होता, ब्लंडर का मतलब ही होता है बड़ी गलती, इसमें बिग और स्मॉल साथ में नहीं लगता है। ब्लंडर अपने आप में ही एक संपूर्ण शब्द है। फ्लोर और ग्राउंड के बीच में डिफरेंस लेट्स सी। फ्लोर इज मैन मेड एंड ग्राउंड इज नेचुरल। तो भाई घर के अंदर है which has been tiled or cemented, it's called a floor because it has been made by some man, by a human. ग्राउंड नेचुरल, बाहर अगर आप जाएंगे, जंगल में जाएंगे, किसी जगह पे जाएंगे जहां पे प्रकृति है, तो उसको ग्राउंड आप कहेंगे क्योंकि वो नेचुरल है, वो किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, वो नेचर ने बनाया। स्किल वर्सेस टैलेंट। स्किल होती है डेवलप, जो आप जिस पर काम करते हैं और जिसको डेवलप करते हैं अपने जीवन में, और टैलेंट होता है गॉड गिवन, जो आपको मिलता है बचपन से। भाई इस पे कोई ध्यान ना दे, टैलेंट एक फर्जी की चीज है, किसी कुछ नहीं होता है टैलेंट। सब लोगों के अंदर एक इनहेरेंट टैलेंट होता है। स्किल इज व्हाट यू शुड फोकस ऑन बिकॉज स्किल इज समथिंग दैट इज इन योर हैंड। आप उस पर काम कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। किसी भी चीज में शुरुआत में आप अच्छे नहीं होंगे, मेहनत करते रहेंगे तो उसमें अच्छे बनते रहेंगे। दैट इज अनडाउटेड। वही जो एक कहा जाता है, एक बहुत फेमस सेइंग है कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। You must understand what it means. If you don't, please look for it or ask in the comment section. I'm sure somebody will be able to tell you. Then we have envy and jealousy. ऐसे envy और jealousy का मतलब क्या होता है? Envy मान लो जैसे my wife. No. Envy मान लो जैसे your wife. अब मेरी कोई दोस्त की वाइफ है या फ्रेंड्स वाइफ, और jealousy हो गया my wife. कैसे? क्या मतलब हुआ इसका? अच्छा, अगर मेरी दोस्त की वाइफ है, मुझे बहुत पसंद है और मुझे वो चाहिए, तो भाई मैं एनवी है मेरे अंदर अपने दोस्त के प्रति, क्योंकि उसके पास कोई एक ऐसी चीज है जो मुझे चाहिए। चीज नहीं मतलब कोई भी और भी चीज हो सकती है, उसकी कार हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो बेसिकली किसी और के पास अगर कोई चीज है जो मुझे चाहिए तो मैं उसको एनवी कहूंगा। वहीं जेलसी हो गया कि अब माय वाइफ, मेरी वाइफ को मेरा दोस्त पसंद आ रहा है, तो उसको मन कर रहा है वो उसके साथ चली जाए, तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरी चीज ना खो जाए किसी और की वजह से, तो वो जेलसी हो जाएगी फिर मेरे दोस्त के प्रति मुझे। तो अगर दोस्त की चीज मुझे चाहिए तो एनवी, और अगर मेरी चीज खोती हुई दिख गई दोस्त के प्रति तो जेलसी। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एनवी एंड जेलसी। All of these might show themselves up in meanings, and again, you must understand the difference between these. We've got case 7 nouns. Some nouns are always treated as plurals. जब कुछ nouns है वो हमेशा plural की तरह treat किए जाते हैं, हमेशा. They will always be treated as plurals. They are written as plurals, treated as plurals. For example, scissors, कैंची, tongs, चिमटा, pliers, plas, pincers. जैसे केकड़े के आगे जो हाथ होते हैं वो pincers का shape होता है, that is pincers. बेलोज एक फुकनी जैसा होता है, बेलोज जिसको यूज करते हैं हम आग में हवा डालने के लिए ताकि आग और ज्यादा भड़के। सो जो लोग काम करते हैं उसमें कुछ आई थिंक दे वुड नो व्हाट बेलोज इज, और यू कैन लुक इन गूगल एंड सर्च फॉर अ पिक्चर एंड यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। ट्राउजर्स, आपके ऊपर पहनने वाले जो आपके ट्राउजर्स हैं, पैंट्स, अंदर पहनने वाले लोअर्स उनको पैंट्स बोलते हैं। पजामास, अगेन एवरीबॉडी नोज व्हाट पजामास आर। शॉर्ट्स, गैलोज, गैलोज का मतलब होता है फांसी का फंदा। फैंग्स, फैंग्स होते हैं वो किसी जहरीले जानवर के नोकीले दांत, जैसे सांप के होते हैं, फैंग्स कहते हैं उन्हें। स्पेक्टिकल्स, चश्मा, गॉगल्स काला चश्मा, बाइनोक्यूलर्स दूरबीन, आई ग्लासेस भी चश्मे। आर्म्स हो गया भीख, जो हम देते हैं भिखारियों को। अमेंड्स मतलब मरम्मत करना, किसी चीज में मरम्मत करना, या किसी कॉन्सेप्ट का मरम्मत करना, कि जैसे किसी रिलेशनशिप का है कुछ, तो वो मेकिंग अमेंड्स होता है वो। आर्काइव्स हो गया आपके पुराने दस्तावेज, जो पुराने सेव दस्तावेज है। So arrears means again arrears means where you are getting a compensation for some work. जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ कार्य का पैसा मिल रहा है, those are your arrears. Auspices, guidance हो गया, किसी के गाइडेंस के अंदर आप काम कर रहे हैं, किसी ऑस्पिसेस के अंदर काम कर रहे हैं। Congratulations, किसी को congratulate जो हम करते हैं, मुबारकबाद देते हैं। Embers, आग जलने के बाद जो थोड़ा बहुत सुलगते रहते हैं कोयले, उनको embers बोलते हैं। Fireworks, पटाखे हो गए। Lodgings, जहां हम रहते हैं, those are our lodgings. आउटस्कर्ट्स, बाहरी क्षेत्र। पर्टिकुलर्स, किसी चीज की विशेष डिटेल्स, उसके पर्टिकुलर्स हो जाएंगे। प्रोसीड्स, जो भी हमने एकत्रित किया है पैसा और आगे बढ़ाया उसको प्रोसीड्स कहेंगे। रिगार्ड्स, आप किसी को अपने लेटर के एंड में कहते हैं रिगार्ड्स, जैसे कि भाई हमारा सम्मान, आदर सम्मान, उसको कहेंगे रिगार्ड्स। रिचेस, आपके पास संपत्ति जो है। रिमेन्स, अवशेष किसी चीज के। सेविंग्स, जो भी आपने जमा पूंजी आपने कर रखी है। शैम्बल्स में मतलब टुकड़े टुकड़े या ध्वस्त होकर कुछ चीज छोड़ देना टुकड़े टुकड़े में, went in shambles, बर्बाद होके शैम्बल्स हो जाता है कोई चीज। सराउंडिंग्स, आपके इर्द गिर्द का क्षेत्र।
ग्लैड टाइडिंग्स, ग्लैड टाइम्स कहते हैं, टाइम्स को टाइडिंग्स कहते हैं कि अच्छे समय आ रहा है तो ग्लैड टाइडिंग्स, और बुरा समय आ रहा है तो सैड टाइडिंग्स लेट्स से। ट्रूप्स, आपके वही सोल्जर्स के ट्रूप्स होते हैं, a group of soldiers that are marching in procession, they're called troops. Tactics, षड्यंत्र, thanks, धन्यवाद कहना, valuables, जो भी आपकी कीमती बहुमूल्य सामग्री है, valuables. Wages, again same as arrears. Wages means thing that you earn, whatever work you're doing, whatever compensation or salary you're getting for it are called wages. Then belongings, जो भी आपकी संपत्ति है, जो भी आपकी चीजें हैं, belongings. So example देख लेते हैं इसके कुछ। Where is my pants? No. तो pants plural हमें पता है, तो it will be where are my pants. Where is the tong? No, again tongs we know, use as plural. See, tongs, where are my tongs? Arm is given to beggars. No, alms are given to beggars. Alms are given to beggars. Alms मतलब भीख. The embers of the fire were still burning. So the embers of the fire were still burning. जो आग बुझ गई पर उसके बाद भी वहां सुलग रहा है कोयला थोड़ा. Alright. We are moving on to our case 8. Apostrophe for ownership is used for. So apostrophe के बारे में बात करेंगे हम. जो apostrophe होता है ownership के बारे में बताता है. जो मोहन्स बुक मतलब मोहन की बुक, ये लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है ज्यादातर. जैसे मोहन कोई व्यक्ति है, मोहन्स बुक, मोहन अपॉस्ट्रोफी है, सन बुक. नॉन लिविंग थिंग्स व्हेन पर्सोनिफाइड, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए तब यूज होता है जब उनको पर्सोनिफाई किया जाता है. पर्सोनिफाई का मतलब या तो उनको एक व्यक्ति का रूप दिया जाता है या व्यक्ति की विशेषताएं उनको दी जाती है. फॉर एग्जाम्पल सन्स फ्यूरी. फ्यूरी मतलब क्या होता है? गुस्सा, क्रोध. तो क्रोध किसका होता है? वैसे तो मनुष्यों का होता है या किसी जानवर का होगा, किसी जीवित वस्तु का होगा क्रोध. सूर्य कोई जीवित वस्तु नहीं है, पर उसको हम बोल रहे हैं कि सूर्य का क्रोध, तो सूर्य को हम एक जीवित वस्तु की तरह मान रहे हैं. इसको हम लोग कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफाइंग समथिंग, गिविंग समवन अ पर्सोना, giving someone a personality based on characteristics that are usually associated with humans or animals, other living things. So sun's fury जब हम personify करेंगे तब हम apostrophe s यूज कर सकते हैं. उसी तरह टाइम, वेट और प्लेस से जो रिलेटेड नाउन्स हैं उनके लिए भी apostrophe यूज होता है. डेज, लीव, आर्म्स लेंथ, पाउंड्स, वेट. सब रिस्पेक्टेबल नाउन्स, कुछ जो आदरणीय संज्ञाएं हैं जिनके लिए आदर होता है समाज में, जैसे कोर्ट हो गया आपका, न्यायालय जो होता है, ड्यूटी हो गया आपका कर्तव्य जो होता है, तो कोर्ट्स ऑर्डर्स, ड्यूटीज कॉल, उनके लिए भी अपॉस्ट्रोफी यूज हो जाता है. कुछ फ्रेजेस में, सम पर्टिकुलर फ्रेजेस में डबल अपॉस्ट्रोफी और अपॉस्ट्रोफी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज हो जाता है. फॉर एग्जांपल एट वंस विथ्स एंड, एट अ स्टोन्स थ्रो. अब वंस विथ्स एंड मतलब अपनी समझ के अब अंत पे, कि अब इससे ज्यादा हमारी समझ में नहीं है कि हम क्या करें, अब नहीं समझ में आ रहा कि आगे क्या करें, तो एट वंस विथ्स एंड. एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब जितनी दूर आप पत्थर फेंक सकते हो उतनी दूर पे, तो मतलब पास में. पास में कहने के लिए भी से एट अ स्टोन्स थ्रो, क्योंकि भाई कितनी ही दूर फेंक लोगे आप पत्थर अपने हाथों से. विद जियोग्राफिकल बॉडीज, और जियोग्राफिकल बॉडीज सेलेस्टियल बॉडीज, जो अंतरिक्ष में जितनी भी पिंड है, जितने भी उल्का पिंड है, उनके नाम जो है उनके साथ भी वी कैन यूज अपॉस्ट्रोफी. फॉर एग्जांपल अर्थ्स एटमॉस्फेयर. अच्छा, कहां यूज नहीं होना चाहिए? अपॉस्ट्रोफी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स. इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग थिंग्स. जो नॉन लिविंग थिंग्स है और नॉर्मली उनके लिए यूज नहीं होना चाहिए. जैसे हम कार्स टायर नहीं कहेंगे, टायर ऑफ द कार कहेंगे. कार्स टायर कहना गलत है, क्योंकि कार नॉन लिविंग थिंग है और उसके टायर के बारे में बात हो रही है, उसको हम लोग कोई पर्सोनिफाई भी नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए कार्स टायर, टायर ऑफ द कार कहेंगे. ऑल्सो शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू अ फैमिली नेम. जब आप किसी फैमिली नेम के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि द गुप्ताज आर कमिंग फॉर आवर वेडिंग फॉर एग्जांपल, तो उस वक्त जब आप गुप्ताज कहोगे तो वो अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे, उसमें सिर्फ एस लगाओगे. द अग्रवाल्स, द तनेजास, द सक्सेनास, द व्हाटएवर, whichever people are coming to your place, the tanejas, तो apostrophe s नहीं लगता है इसमें. ये प्लूरल बनता है तनेजाज, मतलब तनेजा फैमिली, जितने भी तनेजाज हैं, पापा तनेजा, मम्मी तनेजा, बेटा तनेजा, बेटी तनेजा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. डोंट यूज डबल अपॉस्ट्रोफी. अच्छा, एक और चीज है कि डबल अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं करना है. फॉर एग्जांपल माय फ्रेंड्स मदर्स हेल्थ इज बेटर नाउ, गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दो बार डबल अपॉस्ट्रोफी यूज कर रहा हूं. ये सिर्फ कुछ फ्रेजेस में अलाउड है, जैसे यहाँ अलाउड है. एट वंस विद सेंस यहाँ पे सही है, यहाँ यूज होता है, जनरली यूज होता है. माय फ्रेंड्स मदर्स हेल्थ इज बेटर नाउ गलत हो जाएगा. क्या होगा यहाँ पे? द हेल्थ ऑफ माय फ्रेंड्स मदर is better now. तो my friend's mother's health नहीं, the health of my friend's mother, तो उसमें से एक अपॉस्ट्रोफी को आपको हटाना पड़ेगा.
So the health of my friend's mother is better now. So mother's health की जगह मैंने health of कर दिया, health of my friend's mother. अच्छा, possessive pronouns are used without an apostrophe. possessive pronouns जो है, जैसे हम लोग pronouns शुरू करेंगे अभी कल से, उसके बाद आप समझने लगेंगे possessive pronouns क्या है. पर जो है ours, yours, his, hers, its, theirs, ये बिना apostrophe के यूज होते हैं except once. but once में लगता है. अब मैं कहूंगा that every one should do one's duty, कि हर किसी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, तो one's duty वहां पे once apostrophe s के साथ आएगा. We should do our duty, they should do your, or this is yours, this is his, this is hers, this is its, this is theirs. All of these will not have an apostrophe in them. Only once has an apostrophe in it. All right. We'll move on to our next. We'll move to some examples for case 8. देखिए, India's strengths are its diversity of culture and spirit of tolerance in its people. अभी हमने देखा possessive pronouns जो है उसमें apostrophe नहीं लगता है, तो ये its apostrophe वाला नहीं होगा, its होगा. its apostrophe का मतलब होता है it is. तो भाई अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा apostrophe आएगा कि नहीं आएगा, apostrophe अगर लगा है तो it is लगा के देख लो. it is अगर सही चल रहा है वहां पे तो चलने दो apostrophe, अदरवाइज गलत है. जैसे यहाँ क्या होगा, India's strengths are its diversity of culture and spirit of tolerance in it is people. नहीं, it is people तो गलत हो गया, it's people, उसके people में, उनके लोगों में. The greatest glory in life is to be able to realize one's dreams. पर अभी हमने देखा कि once में apostrophe लगता है. तो one's dreams and ambitions without trampling on those of others. To be able to manage one's anger, again one's anger, to be able to manage one's anger is a reflection of an individual's psychological maturity. In 1989, the government did an about face. About face मतलब total change in policy, absolute change, opposite policy. And Iran restored its, again its, उसका family, its is without apostrophe, its family planning program. Alright, let's move on to our case 9. Some nouns look plural but are treated as singular. कुछ nouns हैं जो देखने में तो plural लगेंगे क्योंकि s लगा है उनमें, पर ये होते singular हैं सारे. News, innings, politics, summons, physics, economics, ethics, mathematics, mumps, measles, rickets, shingles, billiards, athletics. All of these. ये mumps, measles, rickets, shingles ये सारी बीमारियां हैं. कुछ subjects हैं. समन्स होता है जो आपको कोर्ट से मिलता है, कोर्ट से ऑर्डर आया आपको अटेंड करने के लिए कि किसी हियरिंग में आपको जाना है तो वो समन्स है. समन्स का प्लूरल हो जाएगा समन्सेस. अब इसका एग्जांपल देखेंगे. नो न्यूज आर गुड न्यूज. नहीं, न्यूज हमने देखा भाई सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है, तो सिंगुलर की तरह ट्रीट होने के लिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो हमने कल किया था, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए. तो नो न्यूज इज गुड न्यूज. पॉलिटिक्स अगेन इज अ डर्टी गेम. इकोनॉमिक्स अगेन is an interesting subject. Ethics demand honesty. No, ethics is singular, तो singular form use होगा verb का. थर्ड पर्सन में ethics demands honesty. अब ethics एक थर्ड पर्सन है ना, मैं हूं ना आप है. ethics कोई और चीज है तो वो थर्ड पर्सन हो गया. थर्ड पर्सन में रिमेंबर थर्ड पर्सन सिंगुलर जो verb होता है सिंपल प्रेजेंट में उसमें s लगता है. Alright, let's move on to our next case. We've got adjectives used as nouns. अब कभी-कभी कुछ adjectives होते हैं. अभी आगे हम लोग adjectives के बारे में पढ़ेंगे तो एक बार फिर से इस चीज को रिवाइज करेंगे कि adjectives कैसे nouns की तरह यूज होते हैं. पर अभी क्योंकि nouns कर रहे हैं, let's do it once. Adjectives used as plurals. Plurals की तरह class of people, the rich. The rich बोल रहा हूं मतलब अमीर लोग. The poor मतलब गरीब लोग. The wicked मतलब शैतान लोग. The righteous मतलब अच्छे लोग. The cautious मतलब सावधान लोग. The reckless मतलब असावधान लोग. The strong मतलब ताकतवर लोग. The meek मतलब कमजोर लोग. तो मैंने ऐसे the rich, अब rich adjective है, the rich man, modifying man becomes an adjective. But when I say the rich, use it with an article, the rich, तब इसका मतलब हो जाता है सारे अमीर लोग. मैं अमीर लोगों के बारे में बात कर रहा हूं. अच्छा, it can also be used as a singular, an abstract quality. Abstract nouns अभी हमने किया था पिछले. Go back and revise if you do not remember what abstract nouns are. The future, the past, the present, the good, the bad, the ugly, the beautiful. अच्छा, the bad का मतलब बुरे लोग भी हो सकता है, but the bad किसी के अंदर की बुराई भी हो सकती है. तो the bad जब मैं बुरे लोगों के बारे में बात कर रहा हूं तो वही प्लूरल हो गया. The bad जब मैं किसी के अंदर के बारे में बुराई के बारे में बात कर रहा हूं तो वो सिंगुलर हो गया. For example, the bad in him comes out whenever his needs are not met. जब भी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उसके अंदर का शैतान बाहर आ जाता है. The bad within him. So the bad there is a singular. अच्छा, कुछ adjectives होंगे जो both proper और जो both प्लूरल और सिंगुलर की तरह यूज होंगे. फॉर एग्जांपल प्रॉपर नाउन्स से. कौन से प्रॉपर नाउन्स? जैसे इंडिया से बन गया इंडियंस. इंडियन भी होता है वन इंडियन, इंडियंस भी होता है टू इंडियंस. ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है. सिमिलरली सारे कंट्रीज के लिए कैनेडियंस, ऑस्ट्रेलियंस एटसेट्रा. या इंडियंस, कैनेडियंस, ऑस्ट्रेलियंस एटसेट्रा.
अच्छा, कुछ लोगों को डिनोट करने वाले जैसे जूनियर जूनियर्स, सीनियर सीनियर्स, मॉडल मॉडल्स, इंफीरियर इंफीरियर, सुपीरियर सुपीरियर्स, नोबल नोबल्स, क्रिमिनल क्रिमिनल्स, सैवेज सैवेजेस, एल्डर एल्डर्स, माइनर माइनर्स. सो मॉर्टल आपके हो गए जो लोग सारी जीवित चीजें क्योंकि वो कभी ना कभी मरती हैं. मॉर्टल, इमॉर्टल हो गया भगवान, जैसे कोई आइडिया. इमॉर्टल हो गया अमर, जिसको कहते हैं अमर हो गया इमॉर्टल, और अमर का ऑपोजिट इज मॉर्टल. So all these are denoting persons, these are adjectives. I can say a junior student, I can say a senior student, so their senior acts as an adjective, but I can also say he is my junior, he is a junior, he is a senior, they are seniors. There it is acting like a noun. Now denoting things in general. और फिर कुछ चीजें जो जनरली चीजों को डिनोट करते हैं वो भी दोनों सिंगुलर प्लूरल में यूज होते हैं, जैसे सीक्रेट सीक्रेट्स, टोटल टोटल्स, लिक्विड लिक्विड्स, सॉलिड सॉलिड्स, वैल्यूएबल वैल्यूएबल्स. तो आपके जो भी सीक्रेट है, टोटल जो पूरा टोटल सम है, solid, liquid and valuables, I'm sure you already understand. Let's move on to noun case 11. अच्छा, the nouns as adjectives always used as a singular. अगर noun को हम adjective की तरह use कर रहे हैं, अभी क्या था, adjective को noun की तरह use करना, अब noun को अगर adjective की तरह use कर रहे हैं तो they are always used as a singular, always as a singular. For example, let's see, he said that he would be going for a teeth checkup. किस तरह का चेकअप, चेकअप यहाँ पे नाउन है, किस तरह का चेकअप, टीथ चेकअप, ये एडजेक्टिव बन रहा है. वैसे क्या होता है, टीथ एक नाउन होता है, काउंटेबल नाउन है, 1 टूथ 2 टीथ. बट हमने अभी देखा कि अगर नाउन को हम एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे, किस प्रकार का चेकअप, टीथ चेकअप, तो हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होगा. इसको हम लोग कहेंगे टूथ चेकअप, ना कि टीथ चेकअप. यस, ऑलराइट. I will not go for a feet massage, I will go for a foot massage. Yes, so feet massage नहीं, foot massage. foot वहां पे सिंगुलर लगेगा. किस तरह का मसाज, foot massage. Alright. Some nouns change in form and being used as an adjective. अब कुछ nouns होते हैं जो अपना रूप बदल लेते हैं अगर उनको adjective की तरह यूज करना हो तो. फॉर एग्जाम्पल नाउन हो जाएगा diligence, सावधानी. एडजेक्टिव हो जाएगा diligent, सावधान, कोई सावधान व्यक्ति, diligent person. ट्रबल, troublesome, trouble मतलब परेशानी, troublesome मतलब परेशान करने वाला. गोल्ड, गोल्डन, गोल्ड आपका मटेरियल नाउन हो गया, गोल्डन आपका वही गोल्डन रिंग, तो गोल्डन एडजेक्टिव बन जाएगा वहां पे. स्टॉर्म, स्टॉर्मी, स्टॉर्म तूफान, तूफानी. करेज, करेजियस, करेजियस ना डरना, निडरता, आपकी निडर होना, करेज, करेजियस. कोई निडर जो है उसको करेजियस कह देंगे. मैन, मैनली, पुरुष, पुरुषत्व. एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन जो कार्य जो भी सक्षम करता है किसी जगह का, रूल्स बनने के बाद जो रूल्स को लागू करता है, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर्टी ऑफ समवन. तो एडमिनिस्ट्रेशन नाउन हो गया, वो काम को करना, वो काम एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और जो वो काम कर रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो गया. तो डिपार्टमेंट हुआ नाउन और एडमिनिस्ट्रेटिव बिकम्स एडजेक्टिव. प्रोहिबिशन, प्रोहिबिटिव, प्रोहिबिशन मतलब मना करना, प्रोहिबिटिव मतलब मना करने वाली चीज. इमेजिनेशन, इमेजिनेटिव आपकी कल्पना और काल्पनिक. अट्रैक्शन और अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन आकर्षण, अट्रैक्टिव आकर्षक. फॉर एग्जाम्पल, he is an attraction person. नहीं नहीं, he is an attractive person. attraction person नहीं होगा, he has attraction. he has attraction, उसके अंदर आकर्षण है, पर वो एक आकर्षक व्यक्ति है. और let's move on to our last slide for today, nouns, and then we'll go on to solving the question paper, previous year's question paper. Some nouns change in meaning when used in the plural form. कुछ nouns हैं उनका मतलब जो है वो अर्थ उनका परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है जब उनको हम प्लूरल बनाते हैं. तो फॉर एग्जांपल, एयर का मतलब तो गैस होता है, पर एयर्स का मतलब क्या होता है, टू हैव एयर्स मतलब बी एरोगेंट, मतलब बहुत घमंडी होना, बहुत पॉम्पस होना, उसको कहेंगे टू हैव एयर्स. हवाबाजी जो करता है, हिंदी में भी यूज करते हैं हम, हवाबाजी करने वाला व्यक्ति. रिटर्न वापस आना, रिटर्न्स अर्निंग्स ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी आपने अपनी पूंजी लगाई है कहीं पे उसमें जो आपको ब्याज मिल रहा है, दोज आर रिटर्न्स. आयरन मेटल, आयरन्स चेन्स, बेड़ियां. सैंड का मतलब होता है क्रश्ड स्टोन, पर सैंड्स का मतलब होता है डेजर्ट, रेगिस्तान. वुड का मतलब होता है मटेरियल ऑफ ट्रंक, जिससे बना होता है वो लकड़ी, जिससे पेड़ बने होते हैं, पेड़ के तने बने होते हैं. पर वुड्स का मतलब होता है जंगल, पूरा जंगल को हम लोग कहते हैं वुड्स. अब्यूज, यूज समथिंग इनअप्रोप्रिएटली, अगर किसी चीज को आप गलत तरह से उपयोग कर रहे हैं तो उसका अब्यूज कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अगर पूरे दिन आप मोबाइल फोन सिर्फ रील्स के थ्रू सर्फ करने के लिए अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो दैट इज एन अब्यूज ऑफ सोशल मीडिया, एन अब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. अब्यूजेस उधर ही वहां पे हो जाता है बैड वर्ड. अच्छा, अब्यूज को बैड वर्ड भी कह सकते हैं, पर अब्यूजेस इज आल्सो यूज्ड एज बैड वर्ड्स. गुड इज मॉरली राइट, बट गुड्स इज आर थिंग्स, दैट द गुड्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. तो वो जो सामग्री है उसको हम लोग गुड्स कहेंगे. पर गुड का मतलब क्या होता है, इज अ गुड बॉय, मतलब अच्छा बालक है. वाटर, द लिक्विड केमिकल H2O, हमें पता है वाटर, पर वाटर्स क्या होता है, ओपन सीज और ओशंस, खुला समुद्र. वर्क, एक्शन जो भी आप कर रहे हैं, पर वर्क हमने अभी पहले भी देखा, लिटरेरी पीसेस. फ्रूट,
एक फल खाने वाला, बट फ्रूट्स रिजल्ट्स ऑफ योर हार्ड वर्क, आपके मेहनत का जो फल है। अच्छा, हमने बहुत बार सुना होगा कि सब्र का फल मीठा होता है। अच्छा, क्या मतलब होता है कि सब्र करने के बाद आपको जो फल मिलेगा वो मीठा होगा? दैट इज नॉट व्हाट इट मींस। इट मींस सब्र कर पाना ही वो फल है जो मीठा है। क्योंकि अगर आपको किसी मीठे फल की आस है तो फिर सब्र कहां है आपके अंदर? वो सब्र कहां हुआ कि भाई कुछ अच्छा मिलेगा मेरे को, कुछ अच्छा मिलेगा मेरे को, तो वो सब्र नहीं। सब्र आप कर पा रहे हैं और आपके अंदर किसी चीज के प्रति एंग्शियसनेस नहीं है, उसी चीज को मिठास बोला जा रहा है कि आपके अंदर जो सब्र कर पाने की क्षमता है वही उसका फल है और उसी में उसकी मिठास है। Then we got wit, ability to answer well, and wits, understanding and intelligence. So wit, ability to answer well, सही से हाजिर जवाबी, उत्तर दे पाना किसी प्रश्न का बढ़िया तरीके से, उसको आपकी wit बोलेंगे, आपकी बुद्धिमत्ता बोलेंगे। और wit से understanding intelligence, और आपकी जो पूरी understanding है किसी चीज की उसको हम लोग wits बोलते हैं। अभी हमने उसमें भी देखा था once wits ends, तो वो wit, ability to answer well उसके अंत में। कस्टम प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग, कस्टम्स प्लूरल एंड टैक्स प्लस टैक्स एट द बॉर्डर। अच्छा, अब हम वो वर्ड्स देख रहे हैं जिनमें एस लगा दो तो उसका प्लूरल भी बन जाता है, पर साथ में एक अलग वर्ड भी की तरह यूज किया जा सकता है उसको। मतलब अगर मैं कस्टम है, प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग, कोई चीज करने का जो हमारा तरीका है, जो परंपरा हमारी चलती आ रही है, उसको हम लोग अपना कस्टम कहते हैं। एक होगी तो कस्टम है, दो होगी तो कस्टम्स हो जाएगा। पर कस्टम्स का एक मतलब और होता है जिसको हम लोग कहते हैं टैक्स एट द बॉर्डर। सो यू मस्ट हैव हर्ड दैट द कस्टम्स ऑफिशियल्स caught 1 kg of gold being let's say somebody was trying to bring in gold from Dubai or some other place, they were trying to bring in something else without giving tax. They did not want to give tax at the border, the tax of being able to take goods from one country to another, and that is what the customs officials are assigned to do. They are supposed to be collecting the tax at the border. So उसका मतलब वो भी होता है, customs का बिल्कुल ही अलग मतलब हो गया। अब मैनर हम देख रहे हैं, way of doing something, कुछ करने का तरीका। वही मैनर्स, हाँ करने के तरीके भी होते हैं, पर साथ में सोशल बिहेवियर को भी मैनर्स कहते हैं कि आपके मैनर्स कैसे हैं, कैसे मैनर्स सिखाए आपको आपके माता पिता ने। पेन, फिजिकल डिस्कंफर्ट, जो दर्द हो रहा है आपको पेन हो गया। पेन्स फिजिकल डिस्कंफर्ट भी होता है, पर साथ साथ में टायरलेस अटेम्प्ट, अगर आप निरंतर किसी चीज में कोशिश कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसको भी हम कहेंगे टेकिंग पेन्स, दैट यू आर टेकिंग पेन्स फॉर योर सक्सेस इन द एनडीए एग्जामिनेशन। फॉर एग्जांपल, क्वार्टर हो गया 1/4, और क्वार्टर्स हो जाएगा प्लूरल एंड अ प्लेस टू लिव। तो 1/4 क्या होगा? 25%। पाव भर जो कहते हैं, पौवा कहते हैं, क्वार्टर वो क्वार्टर नहीं, पर हाँ इट्स द सेम थिंग, इट्स मैथमेटिकल क्वार्टर। एंड इन क्वार्टर्स वी हैव प्लूरल एज वेल, 3 quarters, वी कैन से 3 quarters, 3 पौवे, और वी कैन से अ प्लेस टू लिव, जैसे गवर्नमेंट क्वार्टर्स। सो वो अलग मतलब हो गया क्वार्टर्स का, कि गवर्नमेंट क्वार्टर्स है मतलब वो एक जगह है गवर्नमेंट द्वारा अलॉटेड जहां पे हम लोग रह सकते हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर्स। लेटर, द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ एन अल्फाबेट। अच्छा भाई, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? नहीं, एक होता है, 26 नहीं होते, एक होता है। इंग्लिश अल्फाबेट एक है, उसमें 26 लेटर्स हैं। अल्फाबेट का नाम भी देखिए कहां से आया, अल्फाबेट। ये आया ग्रीक अल्फाबेट से, जिसमें सबसे पहला लेटर होता था अल्फा और दूसरा लेटर होता था बीटा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा आपने किया होगा अपने फिजिक्स मैथ में भी। तो वहां अल्फा से अल्फा, बीटा से बेट, अल्फाबेट, ये वर्ड आ गया अल्फाबेट। अब अल्फाबेट में लेटर्स होते हैं तो इंग्लिश में 26 हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी ऑल द वे टू सी। अब लेटर तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ एन अल्फाबेट हो गया, या पीस ऑफ पेपर कंटेनिंग अ मैसेज, या एक खत भी होता है उसको भी लेटर कहते हैं। और इंफॉर्मेशन, ऐसी लेटर्स उन दोनों का प्लूरल हो जाएगा कि भाई ए अगर एक लेटर है तो ए और बी 2 लेटर्स हैं। ऐसे मैंने एक खत लिखा है तो आई हैव रिटन 1 लेटर, 2 खत लिखे हैं तो आई हैव रिटन 2 लेटर्स। पर वहां पे साथ में लिटरेचर को भी, जैसे हमने वर्क्स देखा था, वर्क्स को देखा था लिटरेरी पीसेस, जैसे उसको लेटर्स भी बोल सकते हैं, द लेटर्स ऑफ शेक्सपियर और द लेटर्स ऑफ प्रेमचंद और द लेटर्स ऑफ रस्किन बॉन्ड एटसेट्रा एटसेट्रा। All right, so we are done with the nouns. Let's quickly go through. We've already done the 2020 third ka second paper of NDA. Now we're going to do 2020 third ka first paper of NDA over the next 2 days. And please go through the questions. Pause the video in between if you want to see at any place that you might feel that you want to answer. And otherwise, we'll just move ahead. So over long periods of time, layers of sediments builds up to a height of few kilometers. और नो एरर। अब इसमें एरर हमें स्पॉट करनी है। आप देखेंगे लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स है, ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ बिल्ड्स नहीं लगता है, बिल्ड लगता है। सिंगुलर के साथ एस लगता है वर्ब में, प्लूरल के साथ नहीं लगता है, तो लेयर्स ऑफ सेडिमेंट बिल्ड हो जाएगा। व्हेन अ गैस इज कूल्ड डाउन इट टर्न्स इनटू लिक्विड फ्रॉम अ प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन, नो एरर। तो इसमें हम देखेंगे लिक्विड फ्रॉम अ प्रोसेस नहीं, इन अ प्रोसेस कहते हैं, इन अ प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन or by a process called condensation. When a gas is cooled down, it turns into liquid in a process called condensation. That process is called condensation. If you want to know the news, you can read the newspaper. This is absolutely correct. There is no error in this. If you want to know the news, you can read the newspaper.
Columbus made his first voyage from Europe to America on 1492. No, in 1492. ये prepositional phrases का ये prepositions का difference आ रहा है. Prepositions जब हम लोग deep में करेंगे तो फिर से एक बार हम लोग देखेंगे कि किस preposition को किस स्थिति में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए. And we will have detailed like 3 or 4 lectures on prepositions in these 40 lectures का series. Alright, let's move ahead. We got when the sky is clear, you can see the stars at night. At night. So not in the night, you can see the stars at night. I'm not working tomorrow, so I don't have to get up early. I don't have to get up early. She didn't tell anybody about her plans. She didn't tell anybody about her plans. No error. She wouldn't have had an accident if she had driven carefully. I will watch film if I finish the work in time. No, I will watch a film और the film. अगर हमें पता है किस मूवी के बारे में बात हो रही है तो the film, कोई भी मूवी अगर देखने की बात हो रही है तो a film. I will watch a film if I finish the work in time. In 1989, the government did an about face and Iran restored its family planning program. हमने अभी इसी लेक्चर में ये वाला क्वेश्चन देखा है. Its family planning program, ITS आएगा यहाँ पे. Its family without the apostrophe. Alright, during the pandemic, alright, we're moving on to the 11th question now. During the pandemic, the indigent people had to suffer a lot. Indigent means very poor. So, which kind of people had to suffer during the pandemic? The people who were not rich. यहाँ पे opulent, solvent, prosperous, all of them means people who were doing well. समृद्ध लोग, that is what it means. Jovial. She had no idea what made him angry in 1 minute and jovial the next. So jovial means happy. एक क्षण में गुस्सा, दूसरे क्षण में खुश, क्या कर देता था उसको नहीं समझ में आता था. Jovial का synonym mirthful. All the other means the same thing. Sad. तो आप देखो कि ज्यादातर ऐसा होता है कि अलग तीन जो है उनके शब्द का अर्थ अलग होता है और एक का अलग होता है और ज्यादातर वो जो एक अलग होता है वही आंसर होता है. या तो synonyms में या antonyms में, depends on what the question is, depending on what the question is asking. पर कैसे आपको याद रहेंगे ये सब? वही बात है कि अभी तक जो आप अपने शब्द देख रहे हैं, जितने भी आप कर रहे हैं, अन्यथा whatever practice you're doing for your vocabulary, continue doing that. But during these classes also, all the new words that are coming across, please make sure to put them in your lexicon as well. In the first lecture, I taught you how to make a lexicon for yourself. किस तरह से आप अपना एक डिक्शनरी, खुद का एक लेक्सिकॉन बनाए ताकि आपका एक न्यूरल नेटवर्क फॉर्म हो आपके सारे वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को लेकर. Now it is sheer lunacy to drive a car in this frosty weather. Lunacy का मतलब बिल्कुल पागलपन. तो insanity is the word that makes sense here क्योंकि prudence, normalcy और sanity तीनों का मतलब होता है समझदारी से काम करना. Then we've got meticulous. So operating on a child with cancer needs meticulous planning and teamwork. इसका मतलब अगर आपको किसी चाइल्ड के ऊपर अगर आपको ऑपरेशन करना है तो बहुत सावधानी से प्लानिंग करनी चाहिए. मेटिकुलस मतलब बड़ी डिटेल्ड, बड़ी सावधानी से आपको प्लानिंग करनी चाहिए. तो इसका सिनोनिम स्क्रैपुलस, व्हिच आल्सो मींस बड़ी सावधानी से, बड़ी डिटेल तरीके से, बड़ी केयरफुली. स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर होता है, उससे कोई मतलब नहीं है. लॉन्ग मतलब लंबा प्रोसेस हो गया, उससे भी कोई मतलब नहीं है. प्लेफुल मतलब खेलते कूदते हुए. तो नहीं भाई, बड़ी सीरियसनेस और बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए. तो मेटिकुलस एंड स्क्रैपुलस इज द मीनिंग ऑफ दैट. Alright, now the thrill of overspeeding the vehicle can be exhilarating. Exhilarating means very exciting, very having a lot of fun in it. But it is important not to take the consequences lightly. देखो, overspeeding vehicle can be exhilarating. भाई तेज गाड़ी चलाना आपके लिए exciting बहुत हो सकता है. But it is important not to take the consequences lightly. But ये बहुत important है कि आप उसके जो परिणाम हैं उनको हल्के में ना लें, क्योंकि तेज चलाने के परिणाम बहुत भारी हो सकते हैं. So dreary, exciting. Exciting is the word here because humdrum, dreary दोनों का मतलब boring होता है. Agitating मतलब परेशान करने वाला. So the redemption will now depend on his new strategy of inclusiveness. Redemption मतलब वापस कोई चीज को ठीक कर पाना, किसी चीज को वापस ला पाना. So retrieval is the answer here. Only 3 candidates are now in contention for the title. Contention means involved in dispute. Only 3 candidates are now in contention for the title, so they are involved in dispute. They are contending. There is a competition happening between them. All my fishing paraphernalia is in the car. Paraphernalia आपकी सारी accessories होती हैं, जो भी आप चीजें यूज कर रहे हैं उसकी जो accessory हैं, those are called paraphernalias. The public watched in astonishment as he took a sudden jump from the bridge. Astonishment मतलब बड़े आश्चर्यचकित रूप से देखना. So in wonderment is the correct word here. Wonderment will be the synonym for this. Drinking inordinate amount of liquor is not good for health. Inordinate मतलब बहुत ज्यादा, बेनतहा. तो exorbitant,
is the meaning here, because moderate, regular, temperate, all of them mean the same thing, which is normal. Let's move on to the 22nd. We got, for hours in a shop, a gunman who held a hostage demanded ransom of 10 lakh rupees. So now we must understand where it will start with. We'll have 3 lectures specifically on the strategies for ordering of words in a sentence. But quickly मैं आपको बता देता हूँ, आपको obvious pairs ढूंढने होते हैं, ऐसे जोड़े जो एक दूसरे के साथ आएंगे ही आएंगे, या आपको beginning of the sentence या end of the sentence आपको ढूंढना होता है, या फिर आखिरी ऑप्शन है कि आप जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें आप ऑप्शन प्लेस करके देखें अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो, और कौन सा सही लग रहा है उसको मार्क करें. फॉर एग्जांपल लेट्स सी अ हॉस्टेज, अ गनमैन हु हेल्ड अ हॉस्टेज. तो अ हॉस्टेज से शुरू नहीं हो रहा है, अ गनमैन हु हेल्ड अ हॉस्टेज से लग रहा है शुरू होगा. अ गनमैन हु हेल्ड अ हॉस्टेज फॉर आवर्स इन द शॉप डिमांडेड रैंसम ऑफ 10 lakh rupees. So QRPS. C is the answer. Look at the 23rd now. Living in Russia, country immediately, Ukraine has urged its citizens to leave the country immediately. S और Q opposite pairs बन रहे हैं. अब S और Q कहां पे आ रहा है? यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है. Let's see, R से शुरू होगा. Ukraine has urged its citizens to leave the country immediately. Living in Russia. Ukraine has urged its citizens living in Russia. RPSQ लग रहा है कि Ukraine has urged its citizens living in Russia to leave the country immediately. यूक्रेन और रशिया में भाई जंग हुई है, तो यूक्रेन ने बोला होगा कि अपने सिटीजन्स को रशिया में जो भी रह रहा है वो जल्दी से यहाँ से निकल जाए. So B is the answer here. Is the answer here. Alright, let's move on to the next one. Ripping roads of houses and raising fears of coast of Madagascar in the early hours, cyclone Emnati crashed into the southeastern. So the cyclone Emnati crashed into the southeastern coast. This looks like an obvious pair. RQ. See, RQ is present here and here. Now let's see which one makes more sense. Does it make more sense that cyclone Emnati crashed into southeastern coast of Madagascar in the early hours, ripping roofs of houses and raising fears of flooding and food shortages in the region? So yes, C looks correct. 24th, C. This is the correct option here. Ecology is protected and aquatic life thrives. We need to utilize the resources of water for different purposes while ensuring that it's natural. RS looks like an obvious pair. For different purposes while ecology is protected could also be we need to utilize the resources of water ensuring that it's natural. So let's see, QRSP seems to be the answer. We need to utilize the resources of water for different purposes while ensuring that its natural ecology is protected and aquatic life thrives. So natural ecology is protected and aquatic life thrives. 25th, C. Let's move on to the 26th. Very difficult. The poor visibility made the movement of traffic due to fog. So let's see. Due to fog, it made it very difficult due to fog. P and S seem like an obvious pair. P and S are here and here. Let's see if we can start with R. Made the movement of traffic? No. So QR, yes. The poor visibility made the movement of traffic. The poor visibility due to the fog made the movement of the passive very difficult. So due to the fog will come first. QSRP. D is the correct option here. Alright. We're done with 26th. Now we'll move to 27th. Let's see, 27th. Avenues for the patients to indict, but rarely is it the other way around. There are multiple legal. So there are multiple legal avenues. There are multiple legal avenues for the patients to indict the doctors, but rarely is it the other way around. So RPSQ seems like the correct option. 27BC would make sense. 28th. Pause and go back if something doesn't make sense. Make sure that whatever sentence has been made, it makes sense to you. If not, please make sure to ask in the comment section. We will surely get in touch with you to answer any queries. Flight and each person her own journey, life is a solo, makes his or her own journey. SQ seems like an obvious pair. SQ is here. C seems to be the only obvious option. See if it makes sense. 28C. We start with R. Life is a solo flight and each person makes his or her own journey. Absolutely correct. Let's move on to the 29th. Now we've got 29th. Let's see, made it evolve. Technology and equipment has made. So
So has will always be followed by a third form. Made, yes. QP seems like an obvious, and QP is only available in the C option. Let's see if it makes sense. Adoption of the latest technologies and equipment has made it evolve into a rare center of excellence. Absolutely correct. Let's move on to the 30th one. Now we'll see, please mark the same be made in response to this notice if you have any complaints to the concerned authority. Please mark the same to the concerned authority, maybe PS. It seems like it's in one. Let's check if it makes sense. RQPS. If you have any complaint to be made in response to this notice, please mark the same to the concerned authority. Absolutely correct. That is D. If there is anything that you might not have understood, please make sure to go back and check. Also make sure to cover all the lectures that have happened before this. And thank you so much for joining in. I will see you in the next one.